Yes, my dear students of class 8, so today's your class will be on importance of law in democracy. So this law is required everywhere. Many times or all the times while in your class I am talking about the rules and laws, regulations, discipline. What is the discipline? Discipline is some types of these rules and laws. So when take the example of this school, if laws will not be there, system will not be there, you cannot maintain the discipline. You will not listen to anyone. Neither I will be just asking you to be disciplined. So everywhere this law is very important in our life, everywhere. Either you are in the house, you are here in the school, you are just moving there, you are just watching the film. So everywhere this law is very important. So if the law will not be there, will not be disciplined, who will run? Just we have only the fear from these rules and laws. If the court would not be there, then you would be ready. You are ready to listen anyone. If the discipline is not there in your organization, do you think the organization will run smoothly? No, this is never. So, law is the very important part of our life, just like the food, just like the water, just like the air. So discipline is also so important in our life for our life running smoothly. So this today chapter, importance of law in our life or in a democracy. When just we are talking about the democracy, there are systems, there are the various this administration or these administrators are there. Somewhere you will see there is the king and queen, but we are going through, if the king is there, queen is there, you are supposed to listen, take care what king is telling, what queen is telling, that's all. But when there is the matter of this democracy, democracy is so vast. Democracy is so vast. So if the law will not be there, we will not be able to run even a step there. Simple example I am trying to explain. We are running there on the road. We are running here in our country on the road by the left side. When just you are watching, you might have been watching, the people from the other part of the world are driving the right side. So watching that, if just you will be implementing this one in your mind, no, foreign they are running this right side, so I will also do. How for long just you will be able to run there on the road? So there is the system, there is the law. So we are supposed to run by the left side of the road. So this democracy is there. Democracy means we are free. We have all this fundamental rights in we are supposed to speak, we are supposed to accept any religion. So this type of things are there. But if just you will not follow the system of this law, you will not be able to maintain the smoothness of the country, you will not able to maintain the discipline of the country. So this rule of law, law means what? Each and every step we are just taking the help of this law. Each and every step. From the very beginning, just you consider yourself, when just you are rising your bed, there is a system in your house, in our house. There is a system when just you will be here, you are here in the school, you are also
just rising there at one time, as the rising bell is just a sound is coming in your brain, in your ear. So what is that? So the rule is there, when you are living there, maybe sometimes in your house there may or may not be some system, but each and every family, when you are living in your family also, there is a system. When you are the student, you are supposed to rise and go to bed when there is system of this taking the food. So we are also following the rules there. Or what is that rule? All rules are equal before the law. So when just you are going through this political science or civics, all the times just I will be talking regarding this constitution, regarding this law, regarding this discipline. We cannot keep them away. No, I don't want to understand anything about this system, discipline, how much you are telling, but you cannot run yourself. Okay, don't listen me. And just you run there on the road, study there in the class. You are the monitor, you will be the captain, you are the just a leader there in the class. Will you not maintain this silence there in the class? Yes, you will do. So all are equal before the law. As many things are there, I will explain this, how this is equal. First, when just we are going through this political science and you are now in class 8, so easily you understand this election. You know this election? You know this election? Why this election is there each and every after 5 years? There is the election of this whole country. We are electing our MPs. How many MPs? 543 plus 2. 2 from where? 2 by the Honorable President of India nominated. So these elections are of 543. When just you are talking about this election, what we are doing there in the election? We are just utilizing our franchisee, adult franchisee, that is called adult franchisee. Adult franchisee. When just you will achieve the age of 18 years, when just you will achieve the age of 18 years, you will get one more right, that will be the casting the vote. Casting the vote. Where? Election. When just you will be 18 years old, you go to this election commission or office, district place, you will see there is an election commission's office. You go there with your identity of age and identity yourself from this village, my father, mother, this, and approach this election commission's office, and election commission's office, they will just make the voter ID card for you. They will make the voter ID card for you, and you will be eligible to cast the vote for any MP, MLA, any this panchayat election, any corporation election. So when just you will achieve the age of 18 years, and what will be the value of that? When just you achieve the 18 years of age, आप वोट डाला, वोट डालने के बाद what will your value? 1. What will your value? 1. क्या कोई 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, या कोई पढ़ा लिखा है, कोई एडुकेटेड है, कोई अनएडुकेटेड है, क्या दोनों में फ़र्क हो जाएगा? आपका हमारा वैल्यू एक होगा, बाकी लोगों का ज़्यादा हो जाएगा क्या? नहीं. Each and everyone who those are eligible to cast a vote after 18 years, the value of all are equal. The value of all are equal, that is 1. The value of all are equal, and that is the value of that one
वोट वैल्यू कितना है? 1, 1. So this is the rule of all are equal before the law. This is clear? All are equal before the law. ये मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल देकर बता दिया कि हम लोग जब 18 साल के हो जाते हैं, when just become 18 of your age, we are casting the vote and value of that caste or value of that vote is one for all. Either you are rich, you are poor, you are a student, you are service holder or any more. So this is quite clear. Equal before the law as education. एग्जाम्पल आया एज एजुकेशन. मैंने आपको एक इसलिए बता दिया कि दिस इज वेरी कॉमन कि हम जब वोट डालते हैं तो हमारा वी वैल्यू का वोट एक ही होता है सबके लिए. और ये एजुकेशन वी ऑल आर एलिजिबल टू टेक. अभी जैसे 14 ईयर्स तक के लिए ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट का सिस्टम ही है कि आपको वहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन जो है आजकल कोई भी बच्चा नहीं छूट जाए. आप यू माइट हैव बीन अवेयर अबाउट दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स आर how much the teachers, the staff, the authorized persons are trying like anything to make the student educated of their area. So why this is? Because this is the pressure of the yourself. आपको और हमारा भी प्रेशर रहता है, अपना भी आपका भी, कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो एरिया है, दैट एरिया शुड बी मच मोर एडुकेटेड. जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हो जाए हमारे एरिया में उतना अच्छा है. सो एजुकेशन सबके लिए बराबर, एटलीस्ट 14 साल के लिए. जब तक आप बच्चों को यू आर नॉट सपोज टू टेक द जॉब फ्रॉम द चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स. 14 साल तक के बच्चों से आपके कोई काम नहीं लेना है, आप ध्यान में रखते होंगे. इसलिए ये एक सिस्टम है क्या कि सबको पढ़ाई यहाँ तक तो ज़रूर होना चाहिए. और ये तो आजकल कंपलसरी हो गया है, इसमें आपको कोई चार्ज भी नहीं लगता है. फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स. चाइल्ड लेबर, यस, ये मैंने कहा आपको, जैसे एजुकेशन यहाँ तक तो आप इसको पढ़ाइए एटलीस्ट 14 ईयर्स तक. उसके बाद वो जब होश संभाल लेगा देन ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ेगा. और फिर ये चाइल्ड लेबर ये प्रिवेंट करना है. चाइल्ड लेबर आपको बिल्कुल जो 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस वन टू यू. वेर एवर जस्ट यू आर लिविंग, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट आपका होगा. एट दैट विलेज, sorry, at that district you will see, you will watch, there is the labor commissioner there. क्या है उसके लिए? लेबर कमिश्नर देयर. लेबर कमिश्नर के क्या मतलब होता है? वी आर वर्किंग देयर इन द एरिया. हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, अपने घरों में भी देखते होंगे, जस्ट यू आर कीपिंग द सर्वेंट रखते हैं, मेड सर्वेंट रखते हैं, दे आर ऑलमोस्ट बिलो 14 ईयर्स. उसके बाद आप देखते होंगे समवेयर जस्ट माइट हैव बीन गोइंग देयर इन द सिटीज एंड टाउन्स and you are going to the hotel for this refreshment or food, so you might have been watching also there. The child are engaged there, children are engaged there. Please try to avoid each, and जैसे मैंने कहा आपको कि each and every district there is the labor commissioner for that. आप छोटे बच्चे से काम नहीं ले सकते हैं, 14 साल से नीचे के बच्चे से कोई काम नहीं ले सकते हैं. केवल आप उसको घरों में बहुत अर्जेंट है, बहुत यानी उसका दरकार है, तो आप उसको केवल घरों में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों में आप उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते, नहीं ले सकते हैं. सो ये आपका एक कंपलसरी रूल है, आपका नियम है, लॉ है, ध्यान में रखेंगे आप. नाउ स्मोकिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, आजकल ये ऑलमोस्ट बंद हो गया है. पब्लिक प्लेसेस में लोग नाउ पीपल हैव बिकम कॉन्शियस. अभी देखते होंगे दिस पैंडेमिक टाइम में मेनी एरियाज, मेनी स्टेट्स थ्रू आउट द कंट्री सिस्टम हैज बीन देयर. नाउ इफ यू आर विदाउट मास्क यू आर सपोज टू इन पब्लिक प्लेसेस, इफ जस्ट यू आर विदाउट मास्क इन गैदरिंग यू आर सपोज टू पे द फाइन. You will have to pay the fine. Somewhere there is the long discussions on this one also. So this is for our safety. So this mask is very essential. Same type of things earlier. Now you are a child, but I have seen such situations. The people earlier when the
starting from the station, especially at the evening time, used to sit there in the train and started the smoking. So that was very wrong practice. It is already, it has been restricted. Just you cannot smoke. अभी तो you cannot spit on the public places. आप पब्लिक प्लेस में थूक नहीं सकते हैं अभी, आप बिना मास्क के नहीं रह सकते, पब्लिक प्लेस में पहले भी नहीं कर सकते थे, ऐसा ही नहीं जहाँ तहाँ जिधर मर्जी आप नहीं कर सकते इस प्रकार की चीज़ों के, स्मोकिंग नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में। यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, और बार बार देख रहे होंगे, यू माइट हैव बीन, कि प्लास्टिक बैग्स का यूटिलाइजेशन बंद हो गया है स्लोली एंड स्लोली। आप अभी बाजार जाते हैं, योर फादर मदर इज गोइंग टू द मार्केट, ऑलमोस्ट हो सकता है आप नहीं जाते होंगे या कभी कभी साथ में जाते होंगे, लेकिन अभी तो नाउ टू दिस पैंडेमिक टाइम यू माइट हैव नॉट बीन गोइंग, नहीं जाते होंगे आप, लेकिन फादर मदर भी जब आजकल बाजार जाते होंगे तो वो भी आजकल अपने साथ क्या ले जाते हैं, बैग, कपड़ा का बैग लेके जाएंगे, कपड़ा का बैग लेके जाएंगे। आपको उस दुकान में भी आपको जल्दी वो नहीं देगा, राशन दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, जल्दी बैग आपको प्लास्टिक कैरी बैग नहीं देंगे। अभी मॉल में जाइए, अगर आप बहुत दरकार भी हो गया तो वो फिर आपसे चार्ज करेगा उसका, तो आप क्यों नहीं बैग अपना घर से लेकर के जाएंगे, कपड़े का बैग लेके जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर देयर, सो रूल्स आर देयर, यू आर नॉट सपोज टू यूज द, इसके लेकिन एक कंट्रोवर्सी है, इसमें हम आपको बाद में समझाएंगे, प्लास्टिक बैग का कंट्रोवर्सी भी बाद में बताएंगे आपको। सो ये प्लास्टिक बैग्स आजकल बैंड है, नहीं ले जा सकते हैं, नीड ऑफ द सोसाइटी। और ये भी दरकार है कि ये जो कानून है, ये जो लॉ है, क्यों बनाया जाता है, वाई, बिकॉज दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैंने आपको कहा कि आप सफ़र करते हैं ट्रेन में, आप सफ़र करते हैं जस्ट मोटरसाइकिल, बाइक पर, उधर रिस्ट्रिक्शन है, लिखा हुआ है कि आपको 100 किलोमीटर के स्पीड से ज़्यादा नहीं चलना है, लेकिन आप क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो आप क्या, उसका रिज़ल्ट क्या होता है आप जानते हैं। सो आपको ये जो चीज़ है आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्लास्टिक जैसे बैग्स, मैंने कहा कि आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करिए, प्लास्टिक बैग नहीं मिलेगा, आपको हाथ में लाना पड़ेगा, सब्जी लाने में, आप वेजिटेबल लाने जा रहे हैं, आप अपना कैरी बैग लेके जाइए हाथ में। नीड ऑफ द सोसाइटी, ये नीड ऑफ द सोसाइटी क्या है, हमारा दरकार डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग, डे बाय डे वी आर जस्ट रिक्वायरिंग द न्यू लॉज। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो मास्क है, हम लोग मास्क कुछ जानते भी नहीं थे, मास्क कुछ जानते भी नहीं थे, मास्क क्या होता है, क्या दरकार है इसका, व्हाट इज द नीड। बट अभी क्या हो गया, ईच एंड एवरी मेंबर्स हु दोज आर गोइंग पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, तो आपको मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है, दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो ये भी एक कभी कुछ समय के लिए कानून बन रहा है कि आप अगर बिना, आप देखते होंगे जब फाइन कर रहा है आपको, आप बेल्ट लगा के नहीं जाते हैं, आप कार में बैठते हैं, आप तो अभी नहीं कर रहे होंगे, फादर मदर भी देखते होंगे, जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो अच्छे लोगों के पहचान है कि वो जरूर बेल्ट लगाएंगे, ठीक है, जो बगल के सीट में है, जो सामने, उनका भी बेल्ट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है आपको। बहुत से लोगों के यहाँ आदत है, बहुत से लोगों की आदत होती है कि दे आर नॉट रेडी टू, हमको क्या होगा, हमको तो कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे ऐसे बिना बेल्ट का। लेकिन भगवान ना करे, जब एक्सीडेंट होता है तभी पता लगता है आपको। तो इसीलिए ये जो नीड्स ऑफ द सोसाइटी क्या है, दरकार होता रहता है हमारा सोसाइटी का, और उस हिसाब से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पैंडेमिक के समय में अभी मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, स्पिटिंग करना पब्लिक प्लेस में नहीं है, सिगरेट पीना और इस प्रकार का नहीं है पब्लिक प्लेस में, ये आज के दरकार है, नीड ऑफ द सोसाइटी है। मेकिंग ऑफ न्यू लॉज, क्या दरकार है, मेकिंग ऑफ न्यू लॉज। बहुत सारा कानून तो बना हुआ है, हमारा वॉल्यूम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, ऑल द रूल्स आर देयर, लेकिन द रूल्स हैव बिकम द ओल्ड, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन नीड ऑफ द न्यू लॉज, सो वी आर मेकिंग द न्यू लॉज, वी आर इन नीड ऑफ द न्यू लॉज। जैसे मैं आपको मास्क की बात बता रहा हूँ, आप मास्क पहले पहनते थे क्या, कभी नहीं, बट इट इज नाउ very essential. So
ये हम लोग कैसे बनाते हैं? लॉ मेकर्स आर देयर, वो दोज आर द लॉ मेकर्स। कानून कौन बनाता है? आर यू अवेयर अबाउट दिस पार्लियामेंट? पार्लियामेंट कहाँ पर है ये? पार्लियामेंट तो हमारा जो है लोकसभा, राज्यसभा, ये दिल्ली में ही है। पार्लियामेंट पूरे देश के लिए जो कानून बनाता है, दैट इज इन दिल्ली। सो लॉ मेकर्स, वो 2000 हम बना लेंगे यहाँ बैठ करके, हो जाएगा? नहीं, यू विल मेक देयर इन द हाउस। आप अपने घर का डिसिप्लिन के लिए आप अपना कानून बना लेते हैं, इतना बजे सोना है, इतना बजे खाना है, हमको मम्मी को तंग नहीं करना है, हमको बाकी पढ़ाई के लिए ठीक करना है, हमारा क्लास जब चालू है वो हम उसको देखना है, तो इस तरह से आप बना लेते हैं। So, ये जो लॉ मेकर्स है, फॉर हु दोज आर देयर इन दिस लोकसभा पार्लियामेंट, दे आर मेकिंग द लॉज फॉर द इंटायर कंट्री। दे आर मेकिंग द लॉज फॉर द ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री। और सबके लिए जो ध्यान में रख के बनाते हैं वो आपको लॉ मेकर्स है। लेजिस्लेटिव पॉलिसी, और यदि लेजिस्लेटिव पॉलिसी फॉर द वीमेन्स राइट्स, और ये लेजिस्लेटिव पॉलिसीज, ठीक है सर, लेजिस्लेटिव पॉलिसीज यदि बनाते कानूनी रूप से, ये जो वुमेन्स राइट है, आप देखते होंगे पहले कि मेल केवल नौकरी कर सकता, फीमेल नहीं करते थे। आप कभी मुंबई जाने का मौका मिलेगा, you will see the 50% of seats are reserved now there for the female, they are in the trains and buses. Buses में थोड़ा कम है, but in the train just you will get 50% seats are now reserved for the females. क्यों? Because ladies are working, girls are working there, college student girls are going there to the schools parallel to the male. So that system has been made there, women's right to just लेजिस्लेटिव पॉलिसी, उनके लिए कानून बनाना है। बहुत सारा चीज़ें हम और बताएंगे आपको। सो दिस वीमेन्स राइट्स, द प्रॉब्लम एंड दिस लॉज, लेजिस्लेटिव पॉलिसी ऑफ वीमेन्स राइट्स। अभी सपोज हम लोग वोट देने का अधिकार सबको है, मेल फीमेल सबको है। हम लोगों का पहले होता था, कल मनली वे मेल वेयर वर्किंग देयर इन द जस्ट बैंक, रेलवे, जस्ट रनिंग दिस एरोप्लेन, but nowadays Lakshmi Lakda of Jharkhand, she was the first girl who started this running train of this country. तो ऐसा आजकल ये नहीं बोल सकते हैं कि अभी तो now they are just फाइटर प्लेन भी चलाना चालू कर दी है। वुमेन्स राइट, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, अभी ये वुमेन्स राइट है प्रॉब्लम ना, चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड्स लेबर, इसका भी प्रॉब्लम है। चाइल्ड को यदि आप अपना एंगेज रखेंगे, नौकरी कराएंगे, आप सर्वेंट बनाएंगे, तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, और पढ़ाई बंद जाएगी तो पढ़ाई बंद हो जाएगी तो वो बहुत मुसीबत में रहेगा, वो डेवलपमेंट नहीं होगा उसका। हाउ न्यू लॉज आर मेड, नया कानून कैसे बनता है? एमपीएन एमपी, जैसे मैंने कहा एमपीज, और फिर देश अपना स्टेट में एमएलएज, कौन बनाते हैं कानून? एमपीज एंड एमएलएज, दिस पार्लियामेंट और आपको विधानसभा, दे आर मेकिंग देयर लॉज बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द डेज। अभी समय में इसका दरकार है, नए कानून का जरूरत है, बिकॉज जस्ट वी आर जस्ट इट इज नीडेड, बिकॉज डे बाय डे जस्ट वी रिक्वायर द न्यू लॉज। दिस इम्पोर्टेंस ऑफ public opinion is very important. Public opinion, how just we are making the law, we are raising the issue, anyone will just raise issue there in the parliament, and this speaker will fix the time and get the opinion of the minimum 2/3. How much? Minimum 2/3. 2/3 का opinion यदि कानून बनाने के पक्ष में रहेगा, then law will be passed. Apartheid system, you have gone through this America. South Africa. South Africa system in, oh yes, South Africa I have written here. So this apartheid system was there in South Africa, there it is also abolished, और वो भी ख़त्म हो गया है। So जब वहाँ 1994 में when this South Africa became free, this apartheid system was also finished, ख़त्म हो गया वहाँ। ओके, कंट्रोवर्शियल लॉ, केवल ये हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोवर्शियल लॉ क्या है? कानून बनाते हैं हम लोग, प्लास्टिक अभी नहीं ले जाना है, लेकिन एक चीज़ फिर मैं बताता हूँ, आपको प्लास्टिक नहीं लेना है, बहुत अच्छा कानून बन गया, हम नहीं ले जाएंगे, लेकिन हु दोज आर मेकिंग द प्लास्टिक, हु दोज आर मेकिंग द प्लास्टिक, दे विल बी द सफरर, वो तो सफरर हो गया।
उसकी नौकरी चली गई. सो दिस टाइप ऑफ थिंग व्हेन जब कानून बनता है देन दिस इज कॉल्ड द कंट्रोवर्शियल लॉ. किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए खराब भी है. ओके, हिस्ट्री ऑफ राइट टू एजुकेशन, ये सब कंपल्सरी एजुकेशन इन यूपीए गवर्नमेंट, इसको बनाया गया था कंपल्सरी एजुकेशन. फूड सिक्योरिटी बिल ये भी उस समय बनाया था. हिस्ट्री ऑफ राइट टू एजुकेशन ये आजकल बहुत एसेंशियल हो गया है. बिना एजुकेशन के आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते. ओके, थैंक्स डियर, जस्ट वी विल सी नेक्स्ट टाइम.